Do you ever think why the food gets spoiled after some time? Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter Food and its Preservation, in which detailing of food is already discussed. Concept Now the question arises why we need to preserve the food. हमें फूड को प्रिजर्व क्यों करना चाहिए? उससे पहले कि फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? फूड जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर आप दूध के एक गिलास को या हाफ गिलास को 2 दिन रख के रखोगे बाहर गर्मी के मौसम में, तो क्या होगा? वो दूध जो है वो खट्टा हो जाएगा। दैट इज बेसिकली द स्पॉइलेज ऑफ फूड। वो क्या है? फूड की स्पॉइलेज। कोई ब्रेड ले लो, ब्रेड को अगर आप कुछ टाइम पीरियड तक बाहर रखोगे तो उसके अंदर क्या होती है? फंगस डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। वो ब्रेड जो है वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है? दही को अगर आप कुछ टाइम के लिए रखते हो तो उसमें से कुछ फाउल स्मेल जो है वो आने शुरू हो जाती है। सो देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस from which you can identify that this particular food item gets spoiled. ये आइटम जो है फूड की वो स्पॉइल हो गई। There are lot of factors which are spoiling the food. So very first topic for today is food spoilage. The topic is food spoilage. What is basically the food spoilage? Food spoilage is a process by which फूड गेट्स कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड के बहुत सारे रीजंस हैं कंटेमिनेशन के। टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक फूड जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है दैट इट इज अनफिट फॉर द कंजम्पशन। कि आप वो जो है अगर आप उसको कंज्यूम करोगे देन यू विल बिकम सिक। आप क्या हो सकते हो? बीमार हो सकते हो। अब फूड स्पॉइल के जो रीजन है, मेन रीजन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are the organisms which you can see with the help of the microscope and you are not able to see with the naked eyes. अपनी eyes से आप उनको नहीं देख सकते, but using the microscope you are able to see the microorganisms. It doesn't mean that all the microorganisms are bad or spoiling the food. There are some microorganisms which are known as good bacteria, and there are some microorganisms which are known as bad bacteria. It means that microorganisms are both friend. Good bacteria are known as the friend for the food and bad bacteria are known as the foe for the food. ठीक है? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कब करेगा? व्हेन योर फूड इज नॉट कवर्ड। जब आपका फूड जो है वो कवर नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस। दैट एनवायरमेंटल कंडीशंस आर इन मॉइस्ट मींस ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट मॉइस्चर इन द एयर इज वेरी हाई, so there are very high chances that your food gets spoiled very fast in that season. So in moist and damp places, तो microorganisms जो होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं? कौन से environmental conditions में डेवलप होते हैं? Moist and damp places पर they are developing. Before discussing the factors which spoil the food, how you will identify that this particular food item gets spoiled? There are few changes that are noticeable. One is the change in color. Change in color, फूड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। It emits, फूड जो है उसमें से फाउल स्मेल आने लग जाएगी, या फिर क्या कर लो कि फूड आइटम्स फाउल स्मेल is coming out and its taste become bad. These are the very common changes that you are able to notice if the food gets spoiled.
There are certain factors that spoil the food. First one is the time. With the time, the food gets spoiled. Already, I have given one example that if a glass of milk is put outside for 2 days, then the glass of milk starts curdling and emits a foul smell. उसमें से क्या आएगी? एक foul smell आएगी और that glass of milk gets spoiled. Right? Next one is the microorganisms. Microorganisms का मैंने बताया था कि microorganisms जो होते हैं वो friend भी होते हैं और foe भी होते हैं. It means there are certain good bacteria also and certain bad bacteria also. If the bad bacteria spoil the food, microorganisms basically are the bacteria, viruses, fungus, etc. These are the microorganisms which spoil the food when your food is uncovered at room temperature, because bad microorganisms generally grow better at room temperature. रूम टेम्परेचर पर जो है वो बैड बैक्टीरिया जनरली ग्रो करते हैं, और अगर आपका फूड अनकवर्ड है तो उस केस में उस फूड के स्पॉइल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. नाउ द थर्ड फैक्टर इज एंजाइम्स. एंजाइम्स मींस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. Certain enzymes are present in the food also, and with over a time these enzymes spoil the food. Example is banana. बनाना के अंदर जो एंजाइम है, बनाना पहला हमारा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, and due to the presence of that particular enzyme, this banana from green color changes to yellow color, and over a time period, उस टाइम पीरियड के बाद में this yellow banana turns into the brownish color or blackish color. ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई होगा तो यहां पर आपका टेस्ट जो है बनाना का वो भी ओवर द टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा. ग्रीन कलर का जो बनाना है जिसको आप रॉ बनाना कह देते हो, वो उसका टेस्ट अलग है. जो एक फ्रेश बनाना लोगे येलो कलर का, उसका टेस्ट अलग है, एंड जो ब्राउनिश कलर का बनाना है उसका टेस्ट अलग है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द बनाना. नाउ द फोर्थ वन इज द एनवायरमेंटल एंड केमिकल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल एंड केमिकल फैक्टर्स मींस इफ द फूड इज लेफ्ट अनकवर्ड, अगर फूड जो है वो ढका हुआ नहीं है तो फूड क्या करता है, जो एयर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट करता है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम पीरियड वो फूड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. एग्जाम्पल ले लो, घर में आपकी मम्मियां सब्जी बनाती हैं, ठीक है, गर्मी के दिनों में वो सब्जी जो सुबह मम्मी ने बनाई है, नेक्स्ट डे आप देखोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखो, या फिर अगर वो फ्रिज के अंदर नहीं रखी है और बाहर ही रखी है, तो क्या होगा, उस सब्जी में से आपको एक फाउल स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, बट इट मीन्स इन द समर सीजन टेम्परेचर इज वेरी हाई. ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल इन दैट पर्टिकुलर केस, एंड द सेम जो सब्जी आपकी मम्मी ने गर्मी में बनाई थी वो आपको नेक्स्ट डे जो है सुबह मॉर्निंग में वो खराब मिली. बट अब विंटर सीजन की अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में क्या है कि जो सब्जी आपकी मम्मी ने आज सुबह बनाई है उसे आप बाहर भी रखोगे तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उतनी फाउल स्मेल क्रिएट नहीं करेगी जितनी वो समर सीजन में कर रही थी. ठीक है, तो इट मींस टेम्परेचर इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन स्पॉइलिंग द फूड. नाउ द फिफ्थ वन इज इंसेक्ट, रोडेंट्स एंड पेस्ट. इसके अंदर जो फूड के अंदर चेंजेस आते हैं, दैट चेंजेस आर केमिकल चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस आते हैं. बट व्हेन इंसेक्ट, रोडेंट्स एंड पेस्ट अटैक द फूड, इन दैट पर्टिकुलर केस द फूड गेट्स फिजिकली स्पॉइल्ड. फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, फिजिकली स्पॉइल होता है. दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट स्पॉइल द फूड. अब फैक्टर्स तो हमने बता दिए कि फूड को स्पॉइल करने के फैक्टर्स क्या क्या हैं. ठीक है, और हम एक फूड जो स्पॉइल हो चुका है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी बता दिया. अब होगा क्या अगर आप एक स्पॉइल्ड फूड जो है वो ईट कर लो,
तो उसके इफेक्ट अगर देखा जाए तो क्या हो सकते हैं, नन, या तो आपके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि फूड जो, अगर आप स्पॉइल्ड फूड को अगर आप ईट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट जो है, स्पॉइल्ड फूड ईटिंग का जो अफेक्ट है वो नन से लेकर के सीवियर तक हो सकता है, ठीक है। नन का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी इम्यूनिटी, इट मे नॉट अफेक्ट योर बॉडी, ठीक है, उसका वो आपकी बॉडी के ऊपर कोई सिम्टम्स ही शो ना करे। एंड इफ इट इज सीवियर देन इट मे कॉज द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है वो कॉज कर सकता है, और फूड पॉइजनिंग के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, दे आर नोजिया, डायरिया, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, एक्सेट्रा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब फूड जो है वो तो हमने बता दिया कि खराब कैसे होता है। अब उस फूड प्रिजर्वेशन, उसको बचाने के भी हमारे पास तरीके होंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। Food preservation is basically the science that deals with the prevention of decay and food spoilage. ठीक है, एक साइंस है जो डील करती है किसके साथ, कि फूड को डिके होने से और फूड स्पॉइल होने से कैसे बचाया जाए। बट सिर्फ इतनी ही नहीं है उस साइंस में, इतना ही नहीं है कि सिर्फ हमें फूड को डिके होने से बचाना है या फिर फूड को स्पॉइल होने से बचाना है। इट ऑल्सो डील्स विद दैट इट अलाउज, दस अलाउइंग, फूड डिके होने से बचेगा तो क्या होगा, अलाउइंग इन स्टोरेज इन बेस्ट कंडीशन, उसको स्टोर भी करना है बेस्ट कंडीशन के अंदर ताकि उसको फ्यूचर में यूज किया जा सके। इट मीन्स फूड प्रिजर्वेशन ensures that food न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो उस फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी चेंज ना हो, उसकी एडिबिलिटी की कंडीशन भी चेंज ना हो। मींस ऐसा ना हो कि आप उसको खा ही ना सको बाद के अंदर, और साथ में उस फूड की क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। ensures that food nutritive value, edibility and quality is maintained। ठीक है, ये है फूड प्रिजर्वेशन। एंड इट ऑल्सो अलाउज दैट फूड प्रिजर्वेशन में क्या है कि वो फूड जो है वो ओवर ए लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहे। जैसे कि अब देखो, पीस जो है वो नॉर्थ रीजन में आपकी कब आती है, जनरली पीस का जो ग्रोइंग सीजन है दैट इज विंटर, वो विंटर सीजन। बट नाउअडेज थ्रू आउट द ईयर यू विल गेट द पीस, ठीक है, आइदर यू विल गेट द पी इन द मार्केट लाइक यू गेट इन विंटर, जैसी आपको सर्दी में मिलती है वैसी ही पी आपको कहां मिलेगी, मार्केट में समर सीजन में भी मिलती है। अनदर वे इज कि यू विल गेट द पी सीड्स ओनली, जो पीस के दाने हैं, मटर के जो दाने हैं वो आपको मिलेंगे कहां से, एक पैक्ड आइटम के फॉर्म में, ठीक है। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो मार्केट में आपको पी मिल रही है, पूरा पी का जो साइज है वो मिल रहा है, तो इट मींस दैट इज ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर सीजन, कि वो उसी सीजन में ग्रो हुआ है और आपके पास आ रहा है, या फिर कोल्ड स्टोरेज में सेव कर रखा था वहां से आपके पास आ रहा है। दूसरा क्या है कि जो आपको पीस के दाने मिलते हैं सील्ड पैकेट के अंदर, वो क्या होते हैं, वो डीप फ्रिज के अंदर क्या किए होते हैं, स्टोर किए होते हैं, तो आपको वो सील्ड पैकेट के अंदर डीप फ्रीजिंग मटर मिलती है। इवन द टेस्ट ऑफ दैट मटर इज वेरी सिमिलर टू द टेस्ट दैट यू गॉट ऑफ पी इन द विंटर सीजन।
उसका टेस्ट भी बहुत हद तक वैसा ही होता है जैसा आपने विंटर सीजन के अंदर मटर खाई थी वैसा। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या था? ड्राई का मतलब होता है सूखना या सुखाना, ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब क्या है? उसको सुखाना है। सुखाना किस लिए है? ताकि उसमें से एक्सेस वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो सके? रिमूव हो सके। तो ड्राइंग मीन्स रिमूविंग ऑफ excess water from the food. Picture of drying is shown next to me, ठीक है। अब इसका क्या होता है? ड्राइंग करने से क्या होगा? और ये ड्राइंग जो है फूड आइटम की, ये किसमें की जाती है? नेचुरल सनलाइट के अंदर और विंड से, हवा से, ठीक है। अब एक्सेस वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट था वो क्या कर दिया? रिमूव हो गया। किससे? सनलाइट की वजह से या हवा की वजह से। तो क्या होगा? माइक्रोब्स आर नॉट अलाउड टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर, माइक्रोब्स आर नॉट अलाउड टू ग्रो इन दैट फूड। क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो कहां ग्रो होते हैं इजीली? जो मॉइस्ट कंडीशन है। जब आपने वो मॉइस्ट कंडीशन ही रिमूव कर दी तो माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो नहीं होंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं तो बेस्ट एग्जाम्पल इज अंजीर, जिसको बोल देते हैं, दैट इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूं तो पी इज द वन एग्जाम्पल एंड ड्राई फ्रूट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर। ड्राई फ्रूट्स हो गया, स्पिनच हो गया, ठीक है। फेनोग्रेक, जिसको आप मेथी कह देते हो, फेनोग्रेक सीड्स नहीं बोल रही मैं, मेथी बोल रही हूं, जिसको आपकी मदर जो है वो किस में यूज करती होगी? जनरली जब कढ़ी बनाते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है, दैट इज बेसिकली द फेनोग्रेक लीव्स। तो उसके अंदर यूज किया जाता है। ये सारे जो हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके? ड्राइंग मेथड के, जिससे कि फूड आइटम्स को एक लॉन्गर टाइम तक यूज किया जाता है और साथ में उसको स्पॉइल होने से भी बचाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फ्रीजिंग। सेकेंड मेथड इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? देखो, मैंने माइक्रोब्स के लिए एक कंडीशन तो बता दी कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे कब कम ग्रो करते हैं? जब उनको वाटर कंटेंट लेस मिलेगा। दूसरा क्या है? माइक्रोब्स जो हैं वो कम ग्रो करते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो। सो फ्रीजिंग में क्या किया जाता है? द टेम्परेचर, द लो टेम्परेचर is used to prevent the food from spoilage। अब ये लो टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कैसे किया जाएगा? ये लो टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कोल्ड स्टोरेज और विद द हेल्प ऑफ द फ्रीजिंग। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग इज frozen peas that you get in summer season in a packet form, जिसको आप समर सीजन में भी जो है वो मिलता है। Now the third method of food preservation is smoking। स्मोकिंग में क्या होता है? फूड इज कुक्ड, फूड को कुक किया जाता है एंड इज एक्सपोज्ड टू द स्मोक दैट इज क्रिएटेड बाय द वुड। वुड से जो स्मोक क्रिएट हुई है उस कुक्ड फूड को उससे एक्सपोज किया जाता है। दैट मेथड इज नोन एज स्मोकिंग एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मोकिंग ऑफ फूड इज स्मोक रोस्टिंग, beef, bacon, etc. ठीक है, these are the examples by which in which smoking method is used for preserving the food. Now the fourth one is packing.
अब स्मोकिंग के अंदर एक चीज मैं बताना भूल गई, स्मोक इज बेसिकली द एंटी microbial that helps to prevent the food from spoilage. Now the fourth method is packing. पैकिंग के अंदर क्या किया जाता है, फूड को एयर टाइट बैग्स के अंदर पैक किया जाता है ताकि फूड जो है वो आपका एक्सपोज ना हो एयर से, और एयर से जब वो एक्सपोज नहीं होगा तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, और केमिकल चेंजेस नहीं होंगे तो फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा. एग्जाम्पल इज ड्राई फ्रूट्स. एंड फिफ्थ वन इज ऑयलिंग, salting. Oiling or salting are the fifth method of food preservation. Sometimes oiling is used to preserve the food. Example मैं बताती हूं आपको. आपकी मम्मियां जो हैं घर में अचार डालती हैं, ठीक है, आम का अचार डालती हैं, नींबू का अचार डालती हैं, या मिर्च का अचार डालती हैं, किसी भी चीज का अचार डालती हैं, तो उसके अंदर वो क्या करती हैं, ऑयल की, जो सरसों का तेल होता है उसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो उस अचार के अंदर डाल देती है. क्यों? ताकि वो आपका जो पिकल मम्मा ने बनाया है वो क्या हो, आपका स्पॉइल ना हो. दैट्स व्हाई ऑयलिंग इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिजर्व द फूड. और सॉल्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सॉल्टिंग क्या है, सॉल्टिंग बेसिकली अगर आप फ्रूट्स के ऊपर अगर आप डालोगे या किसी भी फूड आइटम के ऊपर आप सॉल्ट जो है वो स्प्रे करते हो तो उस केस में क्या होता है, दैट कॉजेज द डिहाइड्रेशन ऑफ द माइक्रोब्स. वो माइक्रोब्स का डिहाइड्रेशन करती है. डिहाइड्रेशन करने से क्या होगा, माइक्रोबियल सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेट होंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. ग्रो नहीं करेंगे तो इट डज नॉट कॉज any bad effect on your food and your food gets prevent from the food spoilage. Now the fifth method, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो पिकल इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, अब उसमें भी सॉल्टिंग कैसे करते हैं, जैसे नींबू का अचार डालना है तो नींबू के अचार में मम्मा क्या करती है, नींबू के 4 पीसेस किए उसमें नमक डाल करके उसको रख देते हैं ताकि वो सूख जाए. या फिर आपकी मम्मी ने कभी कैरेट का अचार डाला है आपने देखा हो, या फिर कॉलीफ्लावर का अचार डाला है, तो उस केस में भी वही सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करती है, सॉल्ट वगैरह डाल के, ताकि उसके अंदर माइक्रोबियल सेल्स जो हैं उनका डिहाइड्रेशन हो और दैट डज नॉट गेट स्पॉइल इन फ्यू डेज, वो फ्यू डेज के अंदर स्पॉइल ना हो. फर्स्ट प्रोसेस तो है वो सॉल्टिंग. एंड आफ्टर जब वो अचार डाल देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल्स की फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं ताकि फूड जो है वो फर्दर आपका क्या चल सके, लंबे टाइम तक चल सके. दिस इज द वन ऑफ द मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, सिक्स्थ मेथड इज sugar. Sugar reduces the, when you sprinkle the sugars on the food items, it reduces the moisture content in that particular food item. ठीक है, जब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो उतनी आसानी से नहीं होगी. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी तो फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस in which the food item, in which the sugar is added in the food item, are apple and strawberry are the fruits, and jams that is most commonly used in your houses, that is also jams and jellies are the example of food items which get preserved by adding the sugar in it. Now the next method of food preservation is chemicals. By adding the chemicals, chemicals means that is by adding the acids or the bases in the food item, you can preserve the food for a long time. The most commonly used chemicals in your household is acetic acid, that is commonly known as vinegar, जिसको आप सिरका कह देते हैं, उसको यूज किया जाता है, and sodium benzoate. These two chemicals are most commonly used in your household items. And in few of the pickles, vinegar is added to prevent it from spoil, and in few pickles
oil is added depending upon the food item which you want to prevent from the food spoilage. Means कुछ अचार के अंदर मदर जो है आपकी वो सिरका ऐड करती है, कुछ के अंदर जो है वो ऑयल ऐड करती है। वो डिपेंड करता है कि फूड आइटम कौन सा है और किसके अंदर किस चीज को ऐड करने से जो है वो फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच सकता है। एंड द नेक्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज हीटिंग एंड बॉइलिंग। हीटिंग एंड बॉइलिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड जिसको यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। अब इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना, एक कप के अंदर ऐसा मिल्क लेना जो आपका बॉइल्ड मिल्क नहीं है, ठीक है, जो आपका फ्रेश मिल्क हो। दूसरे कप के अंदर जो है वो आप ऐसा मिल्क लेना जिसको आपकी मदर ने बॉईल कर रखा है। तो कौन सा मिल्क जो है वो बहुत जल्दी कौन सा मिल्क जो है वो जल्दी स्पॉइल होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो मिल्क आपकी मदर ने बॉईल नहीं किया है दैट मिल्क गेट स्पॉइल्ड फास्ट, वो जल्दी स्पॉइल होगा एज कंपेयर टू द मिल्क दैट इज बॉइल्ड बाय योर मदर, जो आपकी मदर ने बॉईल कर रखा है उसके कंपैरिजन में। रीजन बीइंग on heating and boiling the temperature of the food item is increased and the temperature is so much high in that particular case that microbes generally doesn't grow in that easily, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो आसानी से ग्रो नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड आइटम एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज बॉइल्ड मिल्क, ठीक है, बॉइल्ड मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मेथड जो है दैट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज लुइस पास्चर। ही इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप चीज को बॉईल करते हो और सडनली देन यू गेट इट कूल, और उसको सडनली क्या कर दो, कूल डाउन कर दो, देन दैट पर्टिकुलर फूड आइटम इज नोन एज द पास्चराइज्ड फूड आइटम एंड इट बेस्ट सूट्स ऑन द मिल्क। ये जो है इसीलिए जो आपके बॉटल्स में दूध आता है या फिर जो ये वीटा और अमूल ब्रांड के जो दूध की थैली जो आती हैं दे आर पास्चराइज्ड मिल्क। वो कौन सी होती हैं? पास्चराइज्ड मिल्क होता है। एंड पास्चराइज्ड मिल्क में मिल्क को बॉईल किया जाता है अप टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स के लिए उसको 72 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है एंड देन सडनली इट इज कूल डाउन, और उसके बाद उसको सडनली कूल डाउन कर दिया जाता है। दैट मिल्क इज नोन एज पास्चराइज्ड मिल्क। जो मिल्क की आपके कैंस आते हैं, ठीक है, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके पास आ रहा है, चाहे वो चीज हो, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो आपका मिल्क हो, दे ऑल आर पास्चराइज्ड वन। वो कौन से होते हैं? पास्चराइज्ड होते हैं एंड देयरफॉर दैट आइटम डजंट गेट स्पॉइल इजीली। वो इसीलिए इजीली जो है वो स्पॉइल नहीं होता। नाउ दीज आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि फूड क्या होता है, फूड कैसे स्पॉइल होता है, कैसे उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। बट इफ इन द केस दैट फूड आइटम, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, बहुत सारी अमाउंट का फूड है, तो उसको स्टोरेज करने के लिए भी आपको जगह चाहिए। तो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फूड स्टोरेज। नेक्स्ट इज द फूड स्टोरेज। Food storage is the process that allows you to store the food which you want to consume over a longer time period, like grains, ठीक है, pulses, इनको क्या करते हैं, स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, because like wheat is coming in the month, new wheat is coming in the month of April और March end, ठीक है। तो अब मार्च और अप्रैल के मंथ में वो आपका क्या आएगा, न्यू वीट जो है दैट इज कमिंग इन द मार्केट। सो नेक्स्ट मार्च और अप्रैल तक आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीट को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसीलिए सेम केसेस विद द पल्सेस, सेम केस विद द राइस ऑल्सो। इन दैट पर्टिकुलर केस
यू नीड टू स्टोर द फूड। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, फूड को स्टोर करना पड़ता है। देयर आर मोस्ट कॉमनली टू मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर द फूड स्टोरेज। वन इज द ग्रेनरीज। Granaries are used to store the grains that are grown on a large scale. जो large scale पर grains grow होते हैं like wheat, rice, maize, pulses, they are stored in the granaries. Granaries का जो picture है that is shown on the board. अब ये जो है ये क्या करता है, किससे बचाता है? ग्रेनरीज जो है वो किस किस से बचाती है? रोडेंट से बचाती है, हमने पढ़ा था फूड स्पॉइल का वन ऑफ द रीजन। पेस्ट जो है उससे भी बचाती हैं, इंसेक्ट्स जो है उससे भी प्रोटेक्ट करती हैं ग्रेन्स को। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फूड स्टोरेज। सेकेंड वन इज द सिलोज, SILOS, ठीक है, सिलोस। सिलोस जो है उसकी पिक्चर भी बोर्ड पर दिखा रखी है। ये क्या होता है, एक लार्ज ड्रम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो है जनरली यूज किया जाता है मेज स्टोरेज के लिए। ये मेज स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस के अंदर या डोमेस्टिक पर्पस में हम फूड को कैसे स्टोर करते हैं, या तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, टीन्स के अंदर स्टोर करेंगे, कैंस के अंदर स्टोर करेंगे। दीज आर द वेज विच आर यूज्ड इन द डोमेस्टिक में जो यूज किए जाते हैं। नाउ विद दिस द चैप्टर इज ओवर। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। Please like, share and subscribe the channel of Hari Science and Maths Academy for the video notification. Thank you.